Hello friends. Today we are started a session 9, chapter 2, reproduction in lower and higher animal. So today we are studying about the pregnancy and stages of pregnancy. So what is pregnancy? It is a condition of carrying one or more embryo in the uterus. It's called as a pregnancy or gestation. So in the uterus एक या दो बच्चे यूट्रस में कैरी होते होंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन. दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अ gestation or pregnancy. The average period of pregnancy in human is about 266 day from fertilization. फर्टिलाइजेशन के बाद 266 डे मीन्स 9 मंथ हो जाते हैं, और 280 days counted from the last menstrual cycle. मीन्स 266 डेज पकड़े हम लोगों ने, प्लस 14 करो कि 14 डे में ओवुलेशन हो जाता है. सो ऐसे भी काउंट किया जाता है 266 डे from the fertilization or 280 days from the last menstrual cycle. The pregnancy period of approximately 9 months and divided into the 3 trimester. प्रेगनेंसी पीरियड अप्रोक्सीमेटली कितने मंथ का है? 9 मंथ, 266 डे या और 280 डेज फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड इट डिवाइडेड इनटू द 3 trimester. The first trimester. So first trimester up to 3 months from the fertilization to 12th week means approximately 3 months. So now in first trimester we can study about the changes in the fetus and changes in the mother body. First, changes in the fetus. In first trimester the most radical changes occur in mother and embryo. The embryo receive nutrients in the first 2 to 4 weeks directly from the endometrium. Endometrium is the inner lining of the uterus. So now this embryo obtain the nutrients directly from the endometrium of the uterus in first 2 to 4 weeks. It is main period of organogenesis and the development of the body organs. So in this month the main body organs are developed. So at the end of 8th week the major structure found in the adults are formed in the embryo, and this embryo is called as a rudimentary embryo. Means 8 week हो गया, 8 हफ्ता हो गया, then the major structure are developed in the embryo. embryo में major structure develop होते हैं जो adult में रहते हैं, and this embryo is called as a rudimentary embryo, and the embryo also called as a fetus. उसको बाद में क्या बोलते हैं? fetus. It is about 3 centimeter long. तो हम लोगों ने देखा 8 वीक पहले ऑर्गन बनने स्टार्ट हो जाते, बट एम्ब्रियो टेकिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम द एंडोमेट्रियम. ओके, एट द एंड ऑफ 8 वीक मीन्स 2 महीने के बाद कंप्लीट ऑर्गन्स आर डेवलप जो एडल्ट में है. द एंड एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज अ रूडिमेंट्री एम्ब्रियो. इट इज़ अबाउट 3 centimeter long. So now in this embryo arm, hands, finger, feet, toes are formed. So आप लोग डायग्राम में दे सकते हो 3 महीने के में से. लास्ट 3rd डायग्राम दिख रही है आपको एम्ब्रियो की. fetus can open and close mouth and fist. So you can observe in the diagram जो fetus है ये माउथ और अपने हाथ के फिस्ट मुट्ठी बंद चालू कर सकते हैं. The central nervous system is fully formed. Central nervous system means brain and spinal cord fully formed. Working of excretory and circulatory system begin. इस महीने में working of excretory kidney system पूरा और circulatory system heart system completely क्या हो जाता है? डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है. The movement of fetus begin but mother cannot feel it. fetus की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है बट मदर उसको फील नहीं कर सकती बिकॉज एम्ब्रियो इज़ वेरी स्मॉलर अप टू 3 centimeter long. द हार्ट बीट कैन बी हर्ड फ्रॉम 6 weeks. 6 week होने के बाद हार्ट बीट सुन सकते हैं हम लोग. एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स 3 महीने के बाद fetus is about 7 to 10 centimeter long.
2 महीने में 3 सेंटीमीटर रहता है, बट 3 महीने कंप्लीट होने के बाद इट बिकम 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. So these are the changes in fetus. Now next one is the changes in mother in first trimester. The progesterone level in the blood become high in the mother body and menstrual cycle is suspended till the end of pregnancy. तो मदर बॉडी में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन जो लेवल है प्रेगनेंसी हार्मोन इट बिकम हाई. प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए हार्मोन है और इसकी ब्लड में जो परसेंटेज वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. मेंटेन द प्रेगनेंसी एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल इज सस्पेंडेड. मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है टिल द एंड ऑफ प्रेगनेंसी. इट इज़ अ टाइम ऑफ मोस्ट रेडिकल चेंजेस इन द मदर एंड एम्ब्रियो. मदर और एम्ब्रियो में बहुत चेंजेस होते हैं. मदर बॉडी ऑल्सो शोज रैपिड चेंजेस. मदर बॉडी में रैपिड चेंजेस दिखने स्टार्ट हो जाते हैं. 3 महीने के बाद पता चलता है कि घर में बच्चा दिख रहा है इसे. द हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन इनिशिएटेड चेंजेस इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ गया तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ चेंजेस आ जाते हैं. द मैटरनल पार्ट ऑफ द प्लासेंटा ग्रो. द यूट्रस बिकम लार्जर. यूट्रस जो ऊंब है गर्भ वो आगे आ जाता है. सो इट कैन ईजिली विजिबल इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 महीने के बाद. इन दिस पीरियड द मोस्ट एक्सपीरियंस लाइक मॉर्निंग सिकनेस. तो मदर में क्या होता है, मदर को मॉर्निंग सिकनेस आ जाता है, नोजिया, वोमिटिंग, मूड स्विंग एट्सेट्रा. तो आप एक डायग्राम नीचे देख सकते हैं कि वो उसको उल्टी आ रही है. सो दिस आर द वोमिटिंग, नोजिया, ओके, मूड स्विंग, ऐसे मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं उसको. ये मदर में देखने स्टार्ट हो जाते हैं आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 महीने के बाद. नाउ सेकंड वन इज द सेकंड ट्राइमेस्टर. इट इज़ अबाउट 13 to 26 वीक. ये 3 महीने से 6 महीने तक रहता है. सो इन दिस वीक इन सेकंड ट्राइमेस्टर द चेंजेस इन द फिटस, हम लोग फिटस की चेंजेस देखेंगे. इट इज़ अ पीरियड द रैपिड ग्रो ऑफ फिटस. फिटस की रैपिड ग्रोथ हो जाती है. द यूट्रस ग्रो इनफ फॉर द प्रेगनेंसी एंड बिकम ऑबियस. यूट्रस ग्रो इनफ. अभी यूट्रस 6 महीने तक जितना बढ़ता है उतना, उसके बाद यूट्रस एक्सपांड नहीं होता है. द फिटस इज़ वेरी एक्टिव एंड ग्रो अप टू द 30 सेंटीमीटर. डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन बिगिन. सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप बिगिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, मगर यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन बिगिन. द अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी एट 18 to 20 वीक शो द बेबी ग्रोथ एंड पोजिशन. तो ये इस महीने में उसके बाद सोनोग्राफी की जाती है. तो 18 से 20 हफ्ते तक क्या होता है, इट शो बेबी growth and position. From this, in this period, doctor estimate the delivery date. डॉक्टर डिलीवरी किस महीने में हो जाएगी, किस फलाना तारीख को टेंटेटिवली डेट मिल जाती है. द हेड हैज़ हेयर, आईब्रो, आई लैशेस अपीयर, पिन्ना आर डिस्टिंक्ट. पिन्ना में कान पूरे छूट जाते, एकदम दिखना स्टार्ट हो जाते हैं. द बेबी रीचेस हाफ ऑफ द साइज ऑफ द न्यू बॉर्न. मीन्स जन्म से पहले जितना है उससे हाफ ऑफ द साइज बन जाता है इन सेकंड ट्राइमेस्टर. तो सेकंड ट्राइमेस्टर में आप लोगों को बेबी फिटस बहुत एक्टिव रहता है, 30 सेंटीमीटर तक ग्रो होता है. ओके, हम लोग सोनोग्राफी में उसके पोजीशन ग्रोथ दे सकते हैं एंड डॉक्टर कैन एस्टिमेट द डिलीवरी डेट. ओके, फिटस में क्या डेवलप हो जाता है, हेयर्स, आईब्रो, आईलैशेस अपीयर, पिन्ना डिस्टिंग हो जाता है. Baby reach size of the half of the size of the newborn. Now next one is the second trimester. In second trimester, changes in the mother. The hormone levels stabilize as a HCG decline. Human chronic gonadotropin hormone decline. So हार्मोन इस महीने में क्या हो जाते हैं, स्टेबिलाइज हो जाते हैं. द कॉर्पस ल्यूटेयम डेस्ट्रॉइड्स रिग्रेसेस एंड प्लासेंटा कम्प्लीटली टेक ओवर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन. जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेट हो जाता है एंड द प्लासेंटा इज कम्प्लीटली फॉर्म एंड प्लासेंटा प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन. प्लासेंटा क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्टेरोन. तो आप लोग डायग्राम में, पहले डायग्राम में देख सकते हैं कि दिस प्लासेंटा इज कम्प्लीटली फॉर्म. प्लासेंटा एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड fetus. Okay, HCG means human chronic gonadotropin hormone decline. Decline means कम होना स्टार्ट होता है. बेबी मूवमेंट कैन बी इजीली फेड बाय द मदर. इस सेकंड ट्राइमेस्टर में 6 महीने तक, चौथा, पाँचवा, छठे महीने में मदर बेबी की मूवमेंट इजीली फील कर सकती है.
तो इस महीने में क्या होता है मदर के बॉडी में, प्लेसेंटा पूरा फॉर्म होता है, कॉर्पस लुटियम जो प्रोजेस्टेरोन बनाता है वो क्या हो जाता है, रिग्रेस हो जाता है, रिग्रेस मीन्स डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। प्लेसेंटा प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन टू मेंटेन प्रेगनेंसी, इसलिए 3 महीने तक प्रेगनेंसी बरकरार रखने के मीन्स मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट मंथ है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। बट सेकंड ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज के चांसेस बहुत निग्लिजिबल है बिकॉज प्लेसेंटा इज फॉर्म, इसलिए मिसकैरेज जो भी होता है वो पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे मदर प्लेसेंटा फॉर्म होता है और मदर और फिटस के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश होते हैं। ओके, ये हुआ सेकंड ट्राइमेस्टर। नाउ नेक्स्ट वन इज द थर्ड ट्राइमेस्टर। सो इट इज़ अबाउट 27 वीक टिल पार्टुरेशन, तो लास्ट के 7वें 8वें और 9वां महीना बोल सकते हैं हम लोग उसमें। सो चेंजेस इन द फिटस ग्रो अबाउट 3 to 4 kg in weight, 50 centimeter in length, eyes are open, there is a gain in body weight. At the end of third trimester, the fetus become fully developed and ready for parturition. So at the end of third trimester means 8वें 9वें महीने में, 8वां महीने खत्म होने के बाद 9वें महीने में इट्स रेडी फॉर द पार्टुरेशन, जन्म के लिए रेडी रहता है। सो दीज आर द चेंजेस इन द फिटस। वेट बढ़ जाता है 3 to 4 kg, हाइट भी बढ़ जाती है 50 सेंटीमीटर इन लेंथ, आइज़ ओपन हो जाते हैं, बॉडी गेन करता है, वेट करता है, ओके, एंड फिटस रेडी फॉर द पार्टुरेशन। सो इन मदर चेंजेस, मदर में क्या चेंजेस होते हैं? सो चेंजेस इन द मदर इन थर्ड फाइनल ट्राइमेस्टर, द यूट्रस एक्सपांडेड अराउंड द मदर, अराउंड द मदर यूट्रस एक्सपांड होता है यूट्रस। एब्डोमिनल ऑर्गन बिकम कॉम्प्रेस एंड डिस्प्लेस, इस महीने में मदर को बहुत तकलीफ होती है क्योंकि एब्डोमिनल ऑर्गन्स पूरे कॉम्प्रेस और डिस्प्लेस होते हैं, अपने पोजीशन से थोड़े से खिसक जाते हैं। एंड लीडिंग टू फ्रीक्वेंस यूरिनेशन बार बार होता है। रीज़न क्या है? इट इज़ डायरेक्ट प्रेशर ऑन द यूरिनरी सिस्टम, ओके। डाइजेस्टिव ब्लॉकेज एंड स्ट्रेन ऑन द बैक मसल, इस महीने में डाइजेस्टिव ब्लॉकेज भी होता है और स्ट्रेन ऑन द बैक मसल में जो रीढ़ की हड्डी है वो दुखनी स्टार्ट हो जाती है। तो मदर में इतने चेंजेस आते हैं, ओके। आप लोग सोचो, आप नॉर्मली जब आपका इंटेस्टाइन थोड़ा भी इधर उधर होगा खेलकूद में तो आप लोग तकलीफ देते, बट नाउ मदर के बॉडी में ये जो चेंजेस होते हैं, नाउ द ये चेंजेस कैसे होते हैं? डाइजेस्टिव ब्लॉकेज होता है, खाना भी नहीं खा सकते अच्छी तरह से, स्ट्रेन इन द बैक मसल, आपके बैक मसल पे खेलकूद में होता है तो तकलीफ होती है। तो सोचो मदर के बॉडी में या 3 महीने तक कितना बैक स्ट्रेन आता होगा। एब्डोमिनल ऑर्गन सब सप्रेस होते होंगे, डिस्प्लेस होते होंगे, यूरिनरी सिस्टम फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन के लिए जाना होगा, तो बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है मदर को ना ड्यूरिंग थर्ड फाइनल ट्राइमेस्टर में, ओके। सो नाउ आज के लिए इतना ही काफ़ी है। स्टे सेफ एट योर होम। मैंने मैसेज देने की कोशिश की है कि घर पे रहो और पढ़ाई करो, ओके। थैंक यू, बाय।